yourself. Over to you, Professor Sumayya Sayyed Tariq. Assalamu alaikum, sir. Thank you very much for allowing me this opportunity to present something that I feel should be groundbreaking and should be happening in the medical curriculum and medical circles in Pakistan, at least. I am truly honored. अच्छा, Dr. Salma, madam, आपके साथ मुलाकात यूं नहीं हो सकी because I just had a one-day layover in Islamabad और उसके बाद मुझे कराची वापस जाना था. But next time I'm there, I'll definitely come and visit you. कुछ बैकग्राउंड इसका मैं देती हूँ. लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट एंड फिर मैं आपको अपना बैकग्राउंड भी बताती हूँ कि व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस नाउ. I think you should be able to see this. Okay. I think I've gone back a bit. जी, okay. So basically हमारा ये जो टॉपिक है आज का वो यही है that sexual and gender-based violence which will ensure a survivor-centric holistic approach. As I go along the slides, I should be able to tell you why am I advocating what I'm advocating. थोड़ा सा I can tell you about myself. I am police currently serving as Chief Police Surgeon, Health Department, Government of Sindh. I'm based in Karachi. और मेरा जो करियर है मेडिको लीगल का that spans over 26 years. मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की हुई है, डिप्लोमा इन मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस. आई हैव मतलब and then I'm pursuing my diploma in post graduation in बायोमेडिकल एथिक्स. तो आपको आज का ये जो सारा आप सुनेंगे तो इसमें आपको बायो एथिक्स का भी एक तड़का मैं कहूंगी. यू विल बी एबल टू सी दैट एज वेल. इसका वजह क्या हुई? Why do I want to talk about it? Why am I advocating the survivor-centric holistic approach? I'll take you on my journey from 2018 when I was trained in Sri Lanka by in clinical management of rape and sexual violence by a Kenyan nurse. So she trained me. She was my master trainer. और मैंने उससे सीखा बहुत कुछ कि कितना डिफरेंट अप्रोच है हमारा बिफोर 2018 और फिर उसके बाद 2018 के बाद कितना था. वो सारे जो एडवांसमेंट्स थे आई वाज एबल टू इम्प्लीमेंट देम इन कराची एंड इन सिंध टू सम एक्सटेंट द एंटायर प्रोविंस दैट इज. मतलब कराची मैं तो बेस्ड हूँ तो मेरा ज्यादा वहीं पर होता है बट लेटर ऑन आई वाज एबल टू टेक इट थ्रू आउट द प्रोविंस. फिर 2020 में आई वाज नॉमिनेटेड एज मेंबर स्पेशल कमिटी एंटी रेप एक्ट. सो आई वाज एट अ वेरी peculiar position where I think the whole scenario was changed and we were able to implement through a very a progressive approach of the government at that time and now hamara survivor centric holistic approach. Lagana implement karna is the wrong word here. Policy making will be the right thing. तो policy है हमारे पास law है, हमारे पास rules हैं, but अभी implementation तक हम नहीं गए हैं. And as I went along this, तो मुझे लगा कि things were rather changing. You know why? Because हमारा जो implementation goals थे या हम जो सोच रहे थे कि हमें कैसे change करना है, हम उसको नहीं कर पा रहे थे because of the fact that हमारा जो मैन पावर है वो उस चेंज के लिए रेडी नहीं है. बाय मैन पावर आई मीन हमारे मेडिकल स्टाफ, हमारा पुलिस के एम्प्लॉइज स्पेशली द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, हमारे प्रोसिक्यूटर्स एंड देन हमारी जुडिशरी. सो बेसिकली मेरा काम मेडिको लीगल प्रैक्टिकल मेडिको लीगल से यानी एक्टिव मेडिको लीगल वर्क व्हिच आई स्टार्टेड इन 1999 टिल डेट 26 साल के बाद ऑलमोस्ट 26 इयर्स हो गए हैं उस तक कंटिन्यू किया है. मगर अब मैं एक्टिवली काम कर रही हूँ इन लॉ मेकिंग, इन पॉलिसी डेवलपमेंट. हम सिंध की हद तक हम अपना सिंध मेडिको लीगल एक्ट भी ला चुके हैं. वी आर करंटली वर्किंग ऑन द डीएनए एक्ट एंड द ट्रॉमा एक्ट और प्लस इसके अलावा सेक्सुअल एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस पे मेरे 2 मैनुअल्स मैं प्रिपेयर कर चुकी हूँ. So sexual and gender-based violence mein, I feel that rather than importing concepts which are foreign to our culture, our demographic dynamics, we should be focusing on what can be done, staying within the means that we have at the moment, the mindset that we have, the culture that we follow. Kitna diversified culture hai from up north to the south, from east to west. हमारा कल्चर कहीं भी मैच नहीं करता.
इट्स लाइक टोटली डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है। हर जगह हमारा कल्चर बहुत डिफरेंट है। आप पंजाब, आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग टू ऑल ऑफ द एरियाज ऑफ पाकिस्तान। मैं गिलगित बल्तिस्तान से होती हुई पेशावर, पेशावर से कश्मीर, नहीं सर कश्मीर रह गया, मुलाजिम साहब कश्मीर रह गया है अभी। So Gilgit Baltistan, then Peshawar, Peshawar के साथ चारसदा, and then onwards to Lahore, Multan, and Larkana, Kambar Shadat Court, Sangha, Karachi, Quetta. मतलब I have had the opportunity of going everywhere, interact with people over there, और उनका जो medical legal practices हैं उनको study करने का मुझे मौका मिला है. So this is something that I have been doing for the past 5. This is my 5th year that I'm doing this. हमारे कुछ SGBV से, सेक्सुअल एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस के साथ हमारे कुछ पैराडाइम्स हैं जिनको शिफ्ट होना बहुत जरूरी है। हमारे SDG रूल, हमारे जो SDGs हैं, सोशल डेवलपमेंट गोल्स हैं, हम इस वक्त वो हमारा इससे कोरिलेट कर सकता है। SDG 3 कहता है that the country will ensure, the government will ensure healthy lives and promote well-being at all ages। वो जो आज मैं प्रेजेंट कर रही हूँ वो उसके साथ मैच करता है। SDG 4 ये कहता है कि inclusivity and equitable quality education for all। when you take care of your survivors, when you take care of the traumas, when you take care of their mental and फिजिकल हेल्थ बोथ, तो आप उसकी बात करते हो। आपको ये चीजें सारी, इसीलिए मेरा जो विजन है आप समझो कि वो ब्रॉड हुआ है एंड थोड़ा चेंज हो गया है। Number 5 is achieve gender equality and empower all women and girls. I am not stopping at women and girls. I am talking about transgenders as well. मेरे थोड़े से diversified, मेरे थोड़े से ground breaking, थोड़े से disturbing मेरे views हैं, but I feel that now is the right time that we start talking about all of them, because we being the members of the very respectable profession, जो कि पढ़े लिखे लोगों का एक स्फेयर है, तो आई थिंक इट इज टाइम दैट वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। 5.2 जो SDG 5 है उसका 5.2 स्पेसिफिकली ये बात कहता है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स इन पब्लिक, टू एलिमिनेट देम पब्लिक स्फेयर्स में, प्राइवेट स्फेयर्स में, इंक्लूडिंग ट्रैफिकिंग एंड सेक्सुअल एंड अदर टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। सो आई एम वर्किंग विद ये US का एक वो है, उनका पूरा एक डिपार्टमेंट है जो ट्रैफिकिंग पे काम करता है। सो आई हैव बीन अफिलिएटेड विद, स्लाइटली अफिलिएटेड विद देम थ्रू द सिंध पुलिस एज वेल। हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट लास्ट ईयर थी, दैट प्लेस्ड अस ऑन, जो जेंडर गैप हमारे पास है, वी आर एट लिटरली द रॉक बॉटम। हमारे पीछे सिर्फ सूडान है, अभी वाला मुझे नहीं मिला, तो आई विल नॉट बी एबल टू अप्राइज यू ऑन दैट। यहां से आगे जाने की स्टोरी है ये, जहां मैं आपको लेके जाना चाह रही हूँ। रेप की डेफिनेशन 2021 में बदल दी गई। रेप इज नो लॉन्गर penile penetration. Rape is penetration into any of the naturally occurring orifices of the body against the will or intent of the person. इसमें vaginal की बात कर रही हूँ मैंने, oral और anal की बात नहीं की है। oral और anal में परमिशन के साथ भी ये नहीं किया जा सकता। और ना सिर्फ पिनाइल पेनिट्रेशन, बल्कि ऑब्जेक्ट रेप। ऑब्जेक्ट कैन बी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और ऑब्जेक्ट कैन बी एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। कुछ एंटी रेप एक्ट के तहत कुछ स्ट्रक्चर्स आए। स्ट्रक्चर्स में हमारे पास एंटी रेप क्राइसिस सेल है, स्पेशल सेक्स ऑफेंडर्स इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट्स हैं, एंड स्पेशल कोर्ट्स हैं। एंटी रेप क्राइसिस सेल पे मैं थोड़ा देर में आती हूँ, बट लेट मी एक्सप्लेन द SSOIUs एंड द स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट्स पे ये है कि they will only they are required to only handle the cases which pertain to sexual and gender based violence, और इनके केसेस के लिए जो टाइम लिमिट दिया गया है कि वो 4 महीने में उनको पूरा करेंगे। अब आप में से कुछ लोग शायद कहें कि इट्स नॉट अ पॉसिबल थिंग। वेल लेट मी टेल यू, व्हेन आई जॉइंड दिस डिपार्टमेंट, जब मैं मेडिको लीगल में आई हूँ, तो उस वक्त मेरी एविडेंसेस, जो 2011 का केस था वो मैंने 2018 में दिया, 2019 में दिया, 2016 का जो केस है 2021 में दिया। मगर अभी के जो केसेस हैं 2019 के, 20 के, 21 के, 22 के केसेस जो हैं, वो हम इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर कर रहे हैं। सो मेडिकल जो विटनेस होता है, दैट इज in most instances is the last witness। तो अगर हम 6-8 सालों से, 10 सालों से कम होके इतने पे आ सकते हैं, so I don't think कि 4 महीना is a tall claim। if we can do it, if anyone can do it, ये किया जा सकता है। फिर SSOIUs की बात करते हैं। SSOIUs are special units in the in the police departments, जो कि स्पेशली ट्रेन्ड पुलिस ऑफिसर्स के लिए होंगे, जो कि हैंडल कर रहे होंगे इन केसेस को। I've had the opportunity again to train these people not only in Peshawar but also all parts of the country। और अभी मेरी लास्ट ट्रेनिंग जो थी वो क्वेटा में थी, मैं वहां से करके आई थी। Now I'm heading out to inshallah
The week after the next, I'm heading out to Islamabad again and Sangha, ताकि मैं वहां जाके भी ट्रेनिंग दे सकूं. Lastly, जो हमारा मेडिकल उससे पर्टेन करता है, क्राइसिस सेल का स्ट्रक्चर. क्राइसिस सेल क्या चीज है? क्राइसिस सेल इज, एंड टू मी इट इज एन आइडियोलॉजी. टू मी इसका हमने जो इनिशियल था वो कहाँ से आया? वो आया था वन स्टॉप प्रोटेक्शन सेंटर, जिसको मैंने 2 years रन किया था जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में इन द इयर्स बिटवीन 2019 एंड 2020. 2021 तक इसको हम रन करते रहे. ये वो मॉडल बेस था जो कि टर्किश वन स्टॉप प्रोटेक्शन सेंटर पे था. हमने टर्किश का, मलेशिया का, इंडोनेशिया का हमने देखे थे. इंडिया का स्टैंड अलोन वन स्टॉप प्रोटेक्शन सेंटर मॉडल देखा था, मगर स्टैंड अलोन वहां पे उतना अच्छा काम नहीं किया. और हमें फिर फाइनली हमने ये हुआ, ये मैंने प्रेजेंट किया था टू द स्पेशल कमेटी, और वहां उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि इस तरीके का मॉडल होना चाहिए. एंटी रेप क्राइसिस सेल जो है वो एग्जिस्ट करता है किसी भी हॉस्पिटल में. कम से कम उसमें 2 कमरे जरूरी हैं. कमरे इसलिए 2 जरूरी हैं कि एक मेल और एक फीमेल. अभी तक हमारा अप्रोच ये रहा है कि इफ इट्स अ रेप, इट्स अ फीमेल रेप, एंड अ मेल रेप इज सपोजिटली थोड़ा नीचे है या वो रेप है ही नहीं. जबकि आई फील दैट मेल रेप शुड बी एट पार with the female rape and should be considered just as horrific. इसके मैंने एंटी रेप क्राइसिस सेल के वर्क फ्लोज, इसके मैंडेटरी कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, इसके रेफरल पाथवेज को डिवाइस किया. डिवाइस करने के बाद हमने उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया. पायलट एंटी रेप क्राइसिस सेल हमने एस्टैब्लिश किया, पहला पाकिस्तान का, इन माय ऑफिस विच इज इन द विसिनिटी ऑफ सिविल हॉस्पिटल कराची. एंड शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रामाटोलॉजी, वहां पर हमने पहला पायलट एस्टैब्लिश किया. और अभी तक हम आई थिंक अराउंड 800 प्लस केसेस इसके देख चुके हैं सिंस अगस्त 2023. फिर उसके बाद दूसरा हमने मॉडल जो बनाया है वो जेपीएमसी में बनाया है. इसके अलावा हमारे पास मुल्तान में है. आई वाज नॉट एबल टू अटेंड द इनॉग्रेशन ऑफ दैट. लाहौर में एक बन चुका है, इस्लामाबाद में 2 हैं, एंड देन वी हैव वन इन पेशावर नाउ, एंड वेरी सून वी विल बी ओपनिंग वन इन क्वेटा. सो बेसिकली इसका ये एक आइडियोलॉजी है जिसके पूरे एसओपीज के साथ हम बता सकते हैं कि हाउ इट वर्क्स. नाउ द थिंग्स सो फार have rather been bumpy. The ride has been bumpy. Why? Because we are not ready for this change. The mindset needs to change. जो काम करने वाले लोग हैं, अगर आप वही माइंडसेट के साथ एक नए सिस्टम में आएंगे, that is not likely to work. So where is the fault? I started studying why is it that after 4 years of continuous training across Pakistan, we have not had the desired results. I came to one single conclusion. The system is not ready. The system does not have the required mindset. The main stakeholders in clinical management of rape are not involved. Who are the main stakeholders in clinical management of rape? I'll come to that in a while as I unpack through all this. हमारे जो एग्जामिनेशन होता है इन द जनरल सेंस ऑफ द वर्ड सेक्सुअल वायलेंस के सर्वाइवर्स का, मैं सर्वाइवर्स यूज कर रही हूँ, थोड़ी देर में आगे बाद जाके मैं आई विल बी यूजिंग द टर्म विक्टिम. कौन है, कौन एग्जामिन कर रहे हैं? एग्जामिन करने वाला एक जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर होता है जिसको रोटेशन की बेसिस पे वहां पर डाल दिया जाता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो रोटेट हो रहे होते हैं उसमें से. एंड मेडिकल लीगल ऑफिसर्स आर फ्यू एंड फार इन बिटवीन, एंड इवन देन दे आर नॉट ट्रेन्ड. अब मैंने इसको अपना एक करियर बना लिया. आई चेंज इट इनटू अ करियर फॉर माई सेल्फ कि एक मेडिकल लीगल, आई वाज अपॉइंटेड एज मेडिकल लीगल ऑफिसर अंडर सिंध हेल्थ अंडर the Health Department, Government of Sindh, at the Office of Police Surgeon Karachi, where I now sit as my head office. So मैंने तो इसको career बना लिया, but I don't see people doing that. So in 26 years, in the last maybe 10 years, I don't see anyone following or even attempting to follow in my footsteps. It's not just Karachi. I'm not talking about Karachi because I've had the opportunity, a very rare opportunity, to be able to visit all parts of Pakistan. कहाँ हो रहा है? इमरजेंसी के किसी एक छोटे से कमरे में हो रहा है एग्जामिनेशन. कितना देर लगती है? 20-25 मिनट लगते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्जामिन करो, जैसा आता है वैसा डॉक्यूमेंट करो, और सैंपल्स ले लो. उनको प्रिजर्व करने का तरीका आता है नहीं आता है, इट डजंट रियली मैटर, कोई मसला नहीं है. जस्ट डू द जॉब एंड बी ओवर विद इट. उसके बाद चूंकि लेवल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी आर ऑलमोस्ट जीरो, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी फॉर व्हाट यू माइट हैव डन रॉन्ग. सो हमारे जो केसेस हैं, देन वी लुक टुवर्ड्स के जी हमारा कन्विक्शन रेट क्यों नहीं बढ़ रहा. हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं. मेडिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल मैनेजमेंट,
मेडिको लीगल एग्जामिनेशन इज एन इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर इन द ट्राइपॉड ऑफ जस्टिस, जिसके एक कॉर्नर पे प्रोसिक्यूशन है और एक कॉर्नर पे हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है. I'm sorry, the shortage of time will not allow me to go towards the prosecution और उनके क्या क्या issues हैं, because I am taking a very holistic approach, तो मैं उनको भी address करती हूँ. हमारे पास पुलिस के क्या इश्यूज हैं, आई विल नॉट बी गोइंग इनटू दैट. स्पेसिफिक प्रोफार्मा है, कुछ जगहों पर है, कुछ जगहों पे नहीं है. ठीक है. ट्रेन मैन पावर ट्रेन कर दो, ट्रांसफर हो जाते हैं, दोबारा नहीं आते हैं, दोबारा जाके ट्रेन कर दो. और जो ट्रेंड है भी, हाउ इंक्लाइंड Ma'am, आर we are दे, not hearing. हाउ यू आर नॉट एबल टू हेयर मी? नहीं, next again. Okay, okay. That is okay. You can? Okay. So trained manpower, you're not able. Okay. So you don't find them again. So I keep going back to the same city. इस्लामाबाद जाऊंगी, एक मरतबा मैं 3 लोगों को ट्रेन करके आती हूँ, 4 को ट्रेन कर आती हूँ. नेक्स्ट टाइम अराउंड मेरे पास दूसरे लोग आ जाते हैं. कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रिपीटेड ट्रेनिंग के बाद भी मुझे चेंज नहीं दिखाई देता. आई एम रीच्ड आउट बाय द मेंबर्स ऑफ जुडिशरी. आई एम नाउ सर्विंग एज विजिटिंग फैकल्टी एट द फेडरल जुडिशियल अकेडमी, सिंध जुडिशियल अकेडमी, केपीके जुडिशियल अकेडमी. मैं वहां पे आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद जजेस. तो उन्होंने कहा है कि पॉकेट्स में, बहुत थोड़े थोड़े पॉकेट्स में हमें इंप्रूवमेंट्स मिल रहे हैं, बट जनरली हमें इंप्रूवमेंट ज्यादा नहीं मिल रहा है. सो व्हाई, व्हाट आर वी डूइंग दैट्स रॉन्ग? वी नीड टू एड्रेस द सिस्टमिक चेंज. एक हमारी फीमेल सेंट्रिक अप्रोच है कि रेप है तो बस फीमेल रेप है, और मेल रेप जो है वो नहीं है, ट्रांसजेंडर का रेप नहीं है. वो चेंज होना बहुत जरूरी है. दैट सिस्टम नीड्स टू चेंज. अगर मैं आपको डिवाइड अप करके दूं कि एक क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ सेक्सुअल वायलेंस या रेप के जो मेरा सेक्शन है या मेडिको लीगल का जो पार्ट है वो कितना है, तो 10% इज मेडिको लीगल. बाकी सारा ऑब्स गायनी वाले देख सकते हैं अगर फीमेल है, पीड्स देखती है, सर्जरी वाले देखते हैं, मेडिसिन वाले देखते हैं. मेडिसिन वाले बहुत सारी चीजों में आएंगे, वो अभी मैं उसको थोड़ा सा एलाबरेट करती हूँ. रेडियोलॉजी में जाता है, एंड the most important of them all, rehabilitation and assessment, साइकाइट्री वालों के साथ. फिर इसी सारे जो ये मैंने बड़ी बिग पिक्चर बन रही है, इसमें हमारे पास लैब सपोर्ट भी आ जाता है. लैब सपोर्ट के साथ साथ हमारा पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस यानी HIV एड्स क्लिनिक. हो सकता है HIV एड्स क्लिनिक इज नॉट देयर इन योर हॉस्पिटल, तो मेडिसिन वाले देखते हैं. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, फीमेल है तो आप OBGYN वाले देख लेंगे, मेल है तो मेडिसिन वाले देख सकते हैं. हेपेटाइटिस बी एंड सी, अगेन अगर क्लिनिक्स नहीं है तो वो लोग देख सकते हैं. OBGYN इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, दे कैन प्रोवाइड दैट. अगर मेरे पास मेडिको लीगल क्लिनिक में ये सारी चीजें अवेलेबल. वैसे वी आर वर्किंग ऑन द फैक्ट, आई हैव वर्कड ऑन द सेक्सुअल असॉल्ट किट्स which I call as physical examination recovery kits. उसमें भी हम ये सारी चीजें डलवाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन इन द फर्स्ट इंस्टेंस. मार्जिनलाइज वल्नरेबल ग्रुप्स को कैसे हैंडल किया जाएगा? अब आप ये याद रखिएगा कि नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज, यानी OBGYN के डॉक्टर्स, पीड्स के डॉक्टर्स, सर्जरी के डॉक्टर्स, अगर वो भी इनको देखते हैं, सो दे कैन डॉक्यूमेंट द केस क्वाइट इजीली और एट एज दे आर बीइंग रोटेटेड थ्रू द ER. जैसे भी उनका हॉस्पिटल वो है, क्योंकि हर हॉस्पिटल का, हर एरिया के डायनामिक्स अलग हैं. OBGYN में भेजने का मतलब यह है कि वहां जिन्होंने एग्जामिन किया है वही डॉक्यूमेंट कर दें. मेडिको लीगल वाले अगर वहां अवेलेबल नहीं है या होते ही नहीं है, सो द डॉक्टर्स कैन बी ट्रेन. द डॉक्टर्स नीड ट्रेनिंग फ्रॉम थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स. पीड्स वाले अपना हिस्सा पढ़ाएं, OBGYN वाले अपना हिस्सा पढ़ाएं, सर्जरी वाले उसको इनकॉर्पोरेट करें, मेडिसिन वाले एक होलिस्टिक अप्रोच दें, रेडियोलॉजी वाले उसको अपना एक बताएं, और साइकाइट्री वाले एक सर्वाइवर सेंट्रिक अप्रोच के साथ कैसे कर सकते हैं उसको इनकॉर्पोरेट. नाउ दिस इज समथिंग दैट आई एम वर्किंग टुवर्ड्स, एंड फॉर दिस इफेक्ट I have developed a curriculum कहूँ या मैं उसको chapter कहूँ, I have developed one such chapter which is now like 40 pages long, जिसमें इन सारों को address किया गया है, and I'm working in coordination with professors in peds, OBGYN, and a couple of professors in psychiatry, and I will be bringing on board the surgery people, the medicine people, and the radiology people, ताकि उनसे भी मुझे ये मिल सके. Similarly, lab support वालों के क्या concerns हैं? Lab is not just limited to DNA lab. It also encompasses the lab support which will come for chemical rape under chemical submission. उनका भी मेरे लिए important role हो जाता है. So all of these things need to be integrated, and rather than just focusing on the medico-legal examination of the survivor, I would focus on clinical management of sexual violence and its medico-legal dynamics. तो medico-legal dynamics उसका 10% होता है, मगर बाकी सारी ये चीजें आ जाती हैं, because we are looking towards a holistic reintegration of the survivor
back into the society. हमारा happiness index, I will not go into that. हमारा happiness index कहाँ है वो I think you can Google it later and see that. हमारे marginalized vulnerable groups, how many of us are actually trained to handle these people, even if they reach out to us in times of physical or psychological illnesses? ट्रॉमा की तो अभी मैंने बात ही नहीं की है, ट्रॉमा तक तो मैं गई ही नहीं हूँ. सो ये मार्जिनलाइज और वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए स्पेशल अप्रोच हमें चाहिए. स्पेशल अप्रोच कहाँ से आएगी? स्पेशल अप्रोच हमें आएगी एक इंटीग्रेशन के साथ कि जो ट्रॉमा सर्वाइवर्स हैं. दैट इज व्हाई आई डोंट कॉल इट जस्ट सेक्सुअल वायलेंस, आई एम कॉलिंग इट सेक्सुअल एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस, क्योंकि जेंडर बेस्ड वायलेंस विल इंक्लूड physical trauma, will include psychological trauma, in addition to the sexual violence that may or may not be there. So in sab ke liye, we need a very different approach. And in my 26 years of serving actively in the medical legal department, doing active medical legal practice, I have seen the cases going from bad to worse. I have seen survivors committing suicides, victims committing suicides 6 months down the line, 10 months down the line, 2 years down the line, because they could not cope with the stress that was involved, or they had developed STIs, or they had developed vesicovaginal fistulas, or they had developed gynecological or surgical complications which needed addressing, which they did not know where to go. They did not know where to go. So how does that work? कुछ, अब चूंकि मैं बायोएथिक्स में बात कर रही हूँ, तो ये सारे के सारे जो बायोएथिक्स के कॉमन मोरालिटीज हैं या इनके जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, वो सब हमारे सर्वाइवर का राइट बन जाते हैं. एंड ये हम बगैर उसके भी पढ़ाते हैं. बट आई बिलीव दैट नोइंग बायोएथिक्स, दैट वाज वन ऑफ माय रीजंस टू गो इनटू बायोएथिक्स, कि मैं समझूं कि इसको किस तरीके से बेटर किया जा सकता है. बिकॉज इवेंचुअली व्हेन यू empower the victim, you are actually helping him or her in his journey or her journey to survivorhood. कुछ कॉमन रूल्स ऑफ ऑब्लिगेशन होते हैं, ऑफ कॉमन मोरालिटी. उसमें हमारे पास सफरिंग कॉज नहीं करनी है, हमें हमें एक्स्ट्रा हार्म कॉज नहीं करना है. हम जब सैंपल सही तरह प्रिजर्व नहीं करते, हम जब एग्जामिनेशन सही तरह नहीं करते, हम जब रेफरल पाथवेज में, हम OBGYN में, साइकाइट्री में हम रेफर नहीं करते, तो वी आर एक्चुअली कॉजिंग हार्म. वी need to rescue the persons from danger. क्या हम सोशल वेलफेयर सर्विसेज के साथ कनेक्ट हो रहे हैं? अगर OBGYN में आता है तो क्या उनको पता है कि विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ कैसे कनेक्ट होना है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ कैसे कनेक्ट होना है? हमें अपने डॉक्यूमेंट्स में सच बोलना पड़ेगा. मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन इज जस्ट वन एस्पेक्ट. गायनी का जो रिपोर्ट आती है, या पीड से जो रिपोर्ट आती है, या जो सर्जरी से रिपोर्ट आती है, दैट नीड्स एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन. आई विल नॉट गो इनटू दैट बिकॉज अगेन आई डोंट नो मेरे पास टाइम कितना रह गया है. आई एम बिलीविंग आई स्टिल हैव अराउंड 10 मिनट्स. ओके. उसके बाद वी नीड टू ट्रीट ऑल द पीपल कमिंग टू अस with equal moral consideration. Equal moral consideration. वो transgenders हो, elderly women हो. I have seen people making fun of women, elderly women. I have seen that myself. कि तुम्हें 70 साल की औरत है, वो रेप होकर आ रही है, उसका मजाक उड़ रहा है, तुम्हें कौन रेप करेगा? और उसके सन इन लॉ ने, उसके सन इन लॉ ने उसको एज रिवेंज रेप किया था, बिकॉज उसकी बेटी ने उस सन इन लॉ से तलाक मांगने का हिम्मत कर ली थी, एंड वो डिसरिस्पेक्टफुल हो गया था. सो दैट इज द थिंग दैट I see every other day, or I hear about it. उसको देख रही हूँ, उसको सुन रही हूँ. Respect for autonomy. हम में से कितने लोग सच बोलकर इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट ले रहे हैं अपने सर्वाइवर से? हाउ मेनी और अस आर एक्चुअली वरीड कि प्रिवेसी हमको उनकी मेंटेन रखनी है, हमको नाम बताना नहीं है, हमको डिटेल्स नहीं शेयर करनी है, हमको एरिया नहीं बताना है, हम उनसे इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट. एंड कॉन्सेंट, प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, यू मस्ट रिमेंबर दैट इट इज अ प्रोसेस. सिर्फ ये नहीं कि साइन कर दिया. एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम कॉन्सेंट वो वापस भी ले सकते हैं. फिर हमें उनकी ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करना होगा. नॉन मैलिफिसेंस को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है. जस्टिस यहाँ पे दो कॉनोटेशंस आ जाते हैं. एक तो वो जिसमें मेडिकल लीगल जैसे मैं काम करती हूँ, और दूसरा रिसोर्स एलोकेशन एंड पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज. सो हमारा कितना रिसोर्स है जो अस्पताल का हमारे ऊपर, हमारे सर्वाइवर्स पर लग रहा है? आई डोंट नो. जस्ट अ रूम, sometimes it's a fight to get a room. It's a fight to get a room. ठीक है. तो जब फाइट है, हमारे पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज हैं, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स रिक्वायर accurate or not accurate, appropriate health inclusion of our survivor treatment. Survivors, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो ट्रांस हो,
हमें उनको इक्वल रिस्पेक्ट के साथ ट्रीटमेंट देना होगी अपने अस्पतालों में। और इसके लिए माइंडसेट चेंज के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक लीनियर मॉडल फॉलो करें। हमारा जर्नी जो है एक विक्टिम को सर्वाइवरहुड तक के लिए है। एक होलिस्टिक अप्रोच हमें रखना जरूरी है। हमें नीड्स ऑफ द विक्टिम को स्पेशलिटीज के हिसाब से डिवाइड करना होगा। पीड्स वाले को पीड्स में भेजना जरूरी है। पीड्स का जो पेशेंट है वो माइनर जाना जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि OBGYN में जरूर उसको भेजा जाए। और अगर मेडिको लीगल ऑफिसर वहां अवेलेबल नहीं है, विच इज क्वाइट एप्लीकेबल फॉर अबाउट 90% ऑफ आवर सेंटर्स, तो वो लोग भी एग्जामिन करके मेडिको लीगल डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। उनको 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 कोई ऐसा कोई खास काम नहीं है। इट इज जस्ट 10% ऑफ द टोटल वर्क। Let us revisit the question. Who is examining the victim? It's in most instances, it is the medical officer. So why aren't we focusing on the medical officer? Why are we talking about कि medical legal cadre हम एक अलग करें? Yes, agreed. बिल्कुल अलग कीजिए, क्योंकि सेक्सुअल एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस एक छोटा सा पार्ट है मेडिको लीगल एग्जामिनेशन का, जबकि OBGYN के लिए, पीड्स के लिए, इन सर्जरी के लिए, इन मेल रेप केसेस और ट्रांसजेंडर रेप केसेस, ये एक पूरा पूरा पेशेंट हो जाता है, पूरा विक्टिम हो जाता है। सो फॉर अस it may be a portion of our protocol. For the rest of the treating modalities, ये उनके लिए पूरा का पूरा एक मरीज है। हमें अप्रोच अपना चेंज करना होगा from journey of a victim in his or her journey to survivorhood. वैलिडेट करना जरूरी है। विक्टिम ने जो भी कहा है, बाद में हम देखेंगे कि फॉल्स क्लेम था या नहीं था। वी लीव दैट टू जस्टिस। जब तक हम प्रॉपर प्रिजर्वेशन नहीं करेंगे, या प्रॉपर हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे, या प्रॉपर हम उसको ट्रीटमेंट नहीं करते, हम एम्पावर नहीं करते, तो कैसे हो सकता है बेटर रिस्पॉन्स हेल्थ सेक्टर का, कैसे हो सकता है। एक लीनियर करिकुलम है विच आई हैव डेवलप्ड। इसमें सारे स्पेशलिटीज एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। क्लिनिकल स्पेशलिटीज की बात कर रही हूँ, चाहे वो MBBS हो, चाहे वो BDS हो, चाहे वो हमारे पास बैचलर ऑफ नर्सिंग हो। हमारे पास इस वक्त वी आर वर्किंग इन सिंध, वी आर वर्किंग ऑन द नर्सिंग काउंसिल एक्ट, और उसमें हम अपने नर्सिंग की ट्रेनिंग्स के लिए फोरेंसिक नर्सिंग का कॉन्सेप्ट हम उसमें दे चुके हैं। एंड आई हैव 2 नर्सिंग असिस्टेंट्स विद मी वर्किंग राइट नाउ, जिनको हम स्पेशलाइज्ड ट्रेन कर रहे हैं कि वो क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ रेप करा सके, मतलब कंप्लीट एग्जामिनेशन वो भी कर सके। अब हमारा कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है, how do we bring it all in? And that was the reason why, Mulazim Sahab, I reached out to you, I reached out to Dr. Kundi, Madam Kundi, I reached out to Mia Sahab, कि इन सब को हमें एक ऑन बोर्ड लेकर आना है। मेरे साथ लोग गायनी की प्रोफेसर्स, पीड्स के प्रोफेसर्स, रेडियोलॉजी के प्रोफेसर्स जिनको मैं रीच आउट कर रही हूँ, साइकाइट्री के प्रोफेसर्स, दे आर ऑन बोर्ड। बट हमें ऐसा काम करना है, उसका एक मैं रफ खाका बना चुकी हूँ। आप ज्यादा बेहतर समझते हैं अपने डोमेन को, सो प्लीज रीच आउट टू मी एंड हेल्प मी डेवलप अ प्रोटोकॉल, अ करिकुलम, जो कि हम फोकस जो है वो हम सिर्फ मेडिको लीगल से हटा के हम उसको सर्वाइवर पे फोकस करें, हम उसको विक्टिम पे फोकस करें। आई एम looking towards something that you can possibly help me out in developing a curriculum for all of the modalities, all of the specialities that I have talked about. मेरे जो key takeaways हैं इस पूरे उसके वो यही हैं। Please help me help our victims. हमारे ऑडियंस के कॉन्ट्रीब्यूशंस में आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू देम, कि मुझे कुछ मिलेगा, मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एंड आई विल encourage all of you to follow up. These are my links. You can reach out on my WhatsApp, through my email, or my message me through LinkedIn or X or Insta, however you find it easy to reach out. I'm deeply indebted to Pakistan Medical Association for allowing me this opportunity. Deeply indebted to Professor Bukhari and Professor Kundi for always being so proactive that I am always, I am always left in awe of their proactiveness. Thank you very much, ladies Thank and you so gentlemen. much, Dr. Sumaya. Very nice topic and very important topic. And आपने तो वक्त से पहले खत्म कर दिया। Anyhow, few of the very important figures are here, like Dr. Nazish, Professor of Psychiatry, and Dr. Wajia is also there. She is President of Medical Women Association. And so many other figures are there, like Liberty Person, Professor Rafiq Kanani, Dr. Salma Kundi, and all are there. So, and some of the other, I would like to hear from Professor
मियां रशीद साहब, बिफोर स्टार्टिंग, ओके, डॉक्टर वजिया मैं आपको बुलाता हूँ, रशीद साहब को देख लेता हूँ। डॉक्टर रशीद साहब, प्रोफेसर रशीद साहब, सर, अस्सलामुअलैकुम। रशीद साहब, रशीद साहब, वी आर हेलो। Yes, sir, you carry on with the ओके। question. ओके, डॉक्टर मियां साहब, आपकी एक मैं सॉरी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। एनी आपकी जो इनपुट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू आर टीचर्स ऑफ टीचर, यू आर नॉट ओनली ए टीचर बट यू आर आल्सो रनिंग ए यूनिवर्सिटी एंड ए मेडिकल कॉलेज. You are the teacher who started fellowship and other things. You are the teacher who started different curriculums in this. We need you कि हम इसको आगे वो कर सकें. तो आपका आज का आना एक बड़ा इम्पोर्टेंट था. थैंक यू वेरी मच. अगर आप कुछ और कहना चाहेंगे, रशीद साहब, मियां रशीद साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही या मेरी आवाज़ नहीं जा रही? सर आपकी आ रही है, आई थिंक डॉक्टर रशीद की नहीं आ रही. हेलो। मियां साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप डिस्कनेक्ट हो ना जरा. डिस्कनेक्ट हो के दोबारा ज्वाइन कर. इतनी देर में डॉक्टर वजिया, आपसे गुजारिश थी कि क्योंकि एक पीडियाट्रिशियन, साइकेट्रिक, गायनी वाले भी बैठे हैं. जी डॉक्टर वजिया. Assalamualaikum, sir. Thank you, sir, for such an informative talk, Dr. Sumaya. It was really impressive talk. और जो सबसे ज़्यादा मुझे किया impress that you are reaching out people for such a noble cause. I am Dr. एवरीवेयर, Wajia Rizwan. एवरीवेयर. I am Dr. Wajia Rizwan, founding president of Medical Women Association of Pakistan, and with support of Mulazim Buhari Saab and Madam Salma Kundi, we have now started working nationally as well as internationally. And I am also a pediatrician by profession with special interest in child rights and serving as organizing secretary of Child Protection Committee in my hospital, Children Hospital Lahore. And recently we have worked on a book with UNICEF for the management guidelines along with UNICEF for the Punjab in child abuse cases. मैडम स्पेसिफिकली जब ये रेप की बात आती है या सेक्सुअल अब्यूज की बात आती है, तो जो एडल्ट होते हैं उनका थोड़ा डिफरेंट होता है और जो बच्चे होते हैं उसका बहुत डिफरेंट होता है. बीइंग अ पीडियाट्रिशियन, I feel helpless because many time the victim can't stand for themselves, और जो abuser होते हैं, जो जिसने रेप किया होता है, they are among the family members. वहां पे मैडम MLC की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होती है, क्योंकि पेरेंट्स या जब फैमिली मेंबर्स रिफ्यूज कर देते हैं तो वी टोटली फील हेल्पलेस कि अब उन सर्वाइवर्स को, उन बच्चों को हम किस तरह से बचाएं. वो आते हैं हमारे पास, वी सस्पेक्ट ऑन द क्लिनिकल एग्जामिनेशन दैट इट्स एन अब्यूज, बट दे रिफ्यूज MLC. और अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज इज कंसिडर्ड टू बी अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, लेकिन हमारे पास MLC सेंटर ही नहीं है. और मेरे लिए सबसे पेनफुल होता है जब वो बच्चे, हमें पता होता है कि ये लाइकली फादर ने अब्यूज किया एंड वी आर सेंडिंग देम बैक होम. तो एनी सपोर्ट यू रिक्वायर्ड फ्रॉम अस as a pediatrician or as a Medical Women Association of Pakistan, we are there, and we would be requesting Mulazim Buhari Saab and Dr. Salma Kundi to take another webinar including MWAP and have you on board so that we can spread your message throughout the country. Thank you, madam.
डॉक्टर वजीर, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि मेडिको लीगल सेंटर होने चाहिए, जैसे आपने कहा। वो ही नहीं है तो फिर उसके बाद हम उसको कैसे किया जाए। नॉट ओनली के होम में होते हैं, ऐसा है मैंने देखा कि ये जो बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां घरों में काम करती हैं, वो बेचारी हेल्पलेस होती हैं। तो इस तरह एक पीडियाट्रिशियन हॉलिस्टिक अप्रोच का मतलब यही है कि हम सारे मिलके एक वो करें। थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह विल गो फॉरवर्ड, प्रोसीड फॉरवर्ड टू डू समथिंग एल्स। डॉक्टर बुखारी रशीद साहब, साहब, आवाज अगर आ आप रही? ठीक हो गए। जी, यू आर ऑडिबल सर, जी ऑडिबल नाउ सर। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू जी। ये माशाल्लाह डॉक्टर सुमिया बड़ी डायनामिक लेडी है, और आज हम प्रोफेसर वजीहा, डॉक्टर साइमा जुबैर, हमारे डॉक्टर सलमा कुंदी, बुखारी साहब, आप खुद, और डॉक्टर सादिया है शिफा से, और डॉक्टर शीबा है नर्स मेडिकल कॉलेज से, और बहुत सारे लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। इसमें सबसे बड़ा जो फोकस है वो इस बात पे है, करना चाहिए हमें, कि जो विक्टिम आती है वो एक कंप्रिहेंसिव स्पेशलिटी केस होता है। उसको हाँ, एक बंदा या एक पर्सन हैंडल नहीं कर सकता। नहीं ये कर सकता। कंप्रिहेंसिव स्पेशलिटी केस है, और वो उसके साथ हमदर्दी बहुत कम लोगों की होती है, और जिनकी होती है, जहां वो जाती है जिस सेंटर में, उसकी सूरत हाल आप देखें। हमारे पास मेडिको लीगल सेंटर जितने हैं, उन सब की जो सूरत हाल है बड़ी हॉरिबल होती है। ना वहाँ कोई बैठने की, ना खड़े होने की जगह होती है, और उसके साथ, लेडी के साथ तो हमदर्दी किसी को नहीं होती। और फिर जहां तक है उसको रिहेबिलिटेट करना, वो तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के या हमारी सोसाइटी के किसी कोने में शामिल ही नहीं है, वो मौजूद ही नहीं है एजेंडे के ऊपर। और इस पे डॉक्टर सुमैया ने बहुत ज्यादा काम किया है। इसने अपना पूरा तारुफ नहीं कराया। ये इतना इसने लेजिस्लेशन इस पे किया, और इस पे, इसके ऊपर इसको यूएन अवार्ड मिला है, और यूएन में ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी है। ये बात इसने नहीं बताई। और शी इज एन एक्सीलेंट लेडी। इस पे काम जारी रखें, और हम सबको चाहिए कि इस इश्यू को समझें। और इसके ऊपर, इसमें, और मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा, इसमें एथिकल इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं है जितनी इसमें लेजिस्लेशन की और रिसोर्सेज को डाइवर्ट करने की जरूरत है। इस साइड पे हमारी जो सोसाइटी है, ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। और मैं एथिक्स पे लेक्चर ले रहा था फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के, और मैंने उनको बताया कि ये 80% लेडीज हैं, लेकिन हम कोई टॉपिक हम समझाते नहीं है फर्स्ट ईयर के बच्चे को। भाई आप को एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, और अपोजिट सेक्स पे या जेंडर एजुकेशन उसकी है ही नहीं, जेंडर एजुकेशन पे कोई लेक्चर नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको कि हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए करिकुलम में, और करिकुलम को बेहतर करना चाहिए। मैंने एक तैयार किया है कि एथिकल ड्यूटीज ऑफ ए फर्स्ट ईयर एमबीबीएस एंड बीडीएस स्टूडेंट। अब मैंने दिया है लोगों को, मेडिकल एजुकेशन वालों को, वो उसकी इंपॉर्टेंस ही समझते। वो कहते हैं ले जी इसकी क्या जरूरत है। तो वो भी मैं बुखारी साहब आपको भेजूंगा, और अगर किसी इंशाल्लाह वक्त आप कहेंगे तो सिर्फ इस मौजू पे हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक एक नया मेडिकल स्टूडेंट आता है तो उसको हमने किस तरह, उसको बिहेवियरल ट्रेनिंग उसकी करनी है कि आपने मेडिकल कॉलेज में कैसे रहना है। तो ये जो विक्टिम है, इसके लिए अब ये कोशिश हो रही है, रेप सेंटर्स बन रहे हैं इसके लिए, जो रेप विक्टिम्स के लिए। और जरूरत है कि गवर्नमेंट भी इस पे पैसा खर्चे, और इसमें अवेयरनेस, इवन जजेस को भी इसकी सही अवेयरनेस नहीं है। एक दफा लाहौर हाई कोर्ट ने 3 गायनेकोलॉजिस्टों को एक रेप केस रेफर कर दिया, और दे कुड नॉट डायग्नोज के विर्जिन हाइमन कैसे होता है। तो फिर उसमें एक फोरेंसिक प्रोफेसर को डाला गया, तो फिर बड़ी मुश्किल से वो केस हल हुआ। तो जो फोरेंसिक स्टडीज है वो स्पेशली सम नो हो, हर स्पेशलिटी में उसकी होनी चाहिए, और ओनरशिप होनी चाहिए। ओनरशिप नहीं है हमारे अंदर, कोई उसको ओन नहीं करता। जब भी कोई केस आता है तो जान छुड़ाते हैं। वो जान छुड़ाने वाला एटीट्यूड जो है ना, वो केस को तबाह कर देता है, और वो फिर उलझता उलझता ही जाता है। वैसे भी मैं जुडिशियल एकेडमी वालों ने मुझे बताया कि ऑलरेडी जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं उसमें जो कन्विक्शन रेट है, इट इज लेस देन 1%। ये बात हॉरिबल है। मतलब कि आपने इतना बड़ा सिस्टम बनाया हुआ है पाकिस्तान में जुडिशरी का, लेकिन जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ही डाउन है। तो ये जो विक्टिम है वो धक्के खाता 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 अल्टीमेटली ये फैसला करता है कि मैं मर ही जाऊं तो बेहतर है, कहीं से उसको मेरे बारे सपोर्ट में नहीं तो मिलती। बेहतर है जी, तो जी, उसको इंसाफ नहीं मिलता। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। सर, यहाँ पे थोड़ा सा मियां साहब, थोड़ा सा मैं आपको अपडेट करूं। इस वक्त हमारा जो कन्विक्शन रेट है वो
2 to 3% फॉर द एंटायर कंट्री है, यस आई एग्री। अच्छा, मैंने आपसे ये बात की थी कि एंटी रेप क्राइसिस सेल का जो मॉडल है वो आया वन स्टॉप प्रोटेक्शन सेंटर के मॉडल से, जिसको मैंने 2019 और 20 में कराची में जेपीएमसी में उसको रन किया एज अ टेस्ट। आप यकीन कीजिए इस वक्त हमारा जो कन्विक्शन रेट है वो 11% पे है ऑल अक्रॉस सिंध, बिकॉज कुछ ऑफ बेहतर हो गया, कुछ बेहतर हो गया। बेहतर, बहुत बहुत बेहतर हुआ है। अभी आप आगे सुनिएगा, 11% हमारे पास सिंध में है कन्विक्शन रेट। सेकेंड चीज ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जहां पे मैं ये वन स्टॉप प्रोटेक्शन सेंटर मैंने चलाया है, इसी होलिस्टिक अप्रोच के साथ इंटीग्रेटेड हमारे सारे स्पेशलिटीज, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, बेटर पुलिसिंग, बेटर प्रोसिक्यूशन, उसके साथ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची का जो रेट था वो 2021 में हमारा 40% तक गया, 40% Great. सो ये कहना, तो ये वो चीज है जब हम एक आइसोलेटेड जगह पर इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो दीज आर एप्लीकेबल थिंग्स। इसीलिए मैंने कहा ना, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे अपनी पॉलिसीज, हम उसको डायनामिकली सर अपने पास उसको ऐसा उसको चेंज करें कि वो डायनामिकली हमारे पास एप्लीकेबल हो जाए। डॉक्टर सुमैया, मैं आपको एक बात बताऊं कि मियां साहब फाउंडिंग प्रिंसिपल जी हैं जहाँ जी मैं सर, रहा। जी सर, मैं मिली आप हूँ सर, यकीन बिल्कुल माने कि जब मैं वहाँ गया ना, तो वहाँ जी पे मेडिको लीगल क्या, वहाँ पे मॉर्चरी की जगह ही नहीं थी। मैंने आबिद करीम साहब को कहा, प्रोफेसर आबिद करीम साहब ने एम्स में पहली दफ़ा रशीद साहब मियाँ साहब उसने ये काम किया। इसके बाद जाहिर है वो कॉन्ट्रैक्ट पे होता है। एनी वो मेजरेबल सिचुएशंस है पाकिस्तान में। और दूसरा, 1996 में मैं थोड़ी देर के लिए ये मेडिको लीगल सर्जन रहा, तो उसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट मियाँ साहब से मैं एग्री करूँगा कि मियाँ साहब इसके अंदर जो पुलिस सैंपलिंग होती है, पुलिस ही वहाँ पे एक पैसा लग जाता है और सैंपल ही चेंज हो जाता है। इस चीज़ पे मैडम अब आपको वो करना चाहिए कि सैंपल प्रॉपरली जो है वो जाना चाहिए, और उसके अंदर पुलिस का, और उसके बाद फिर आगे जो जुडिशरी का सिस्टम होता है, उस जो हालात ख़राब होते हैं उससे डॉक्टर भी कतराता है और एक उस पर कतराता है। बिफोर दिस में आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर नाजिश, प्रोफेसर नाजिश is a professor of psychiatry. I will request, thank you very much, you're joining Dr. Wajia, and you become very nice lady. डॉक्टर साइमा जुबैर भी हैं यहाँ पर मौजूद, उन्होंने बहुत काम किया है इस पे, उनके कमेंट्स भी लीजिएगा। Can के? डॉक्टर साइमा जुबैर भी हैं, मैं उनको लेना है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनको लेना उन्होंने है, बहुत काम उनको किया ले, है। जी उनको लेना है। डी प्रोफेसर नाजिश। जी, अस्सलाम वालेकुम। First of all, I think it's wonderful to be part of this webinar on such an important topic. And I have seen actually Sumayya and me are class fellow from Dow. So we ओह, were अच्छा so अच्छा we अच्छा। were class fellows, and I've seen her struggle and sort of doing wonderful work, and how she started from scratch where nothing existed. और पब्लिक सेक्टर में एक पूरा चेंज सिस्टम में लाना, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट, और इट हैज नॉट बीन इजी, द चैलेंजेस व्हिच शी समटाइम्स शेयर्ड. So it's wonderful to see things moving forward, and how she is representing Pakistan at international forums, as well as bringing about change in a very challenging स्पेशलिटी एंड वेरी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, जो कि बहुत मेल डोमिनेटेड अभी तक है, उसमें जिन स्ट्रगल से गुजर के, और इतनी मेजर चेंज फॉर द सर्वाइवर्स एंड हैविंग अ होलिस्टिक अप्रोच, हैट्स ऑफ टू यू सुमैया. एज फार एज करिकुलम की आप बात कर रही थी, सो किसी भी टाइप की वी वी आर वर्किंग रिगार्डिंग सम सुसाइड रिलेटेड प्रोजेक्ट, बट इसमें भी कोई भी हेल्प फ्रॉम साइकियाट्रिक एस्पेक्ट चैप्टर राइटअप में या उसमें, तो डू लेट मी know. And as part of Medical Women Association as well, Wajiha has joined too. So I'm director research from that platform as well. Any support which you need from Medical Women Association of Pakistan, जो कि अब 4 provinces में further expand कर रही है. So we are very happy to sort of support in any way all of us can. So थैंक यू thank सो you मच so much. डॉक्टर नाजिश। एंड बिफोर गोइंग टू अदर, हमारे पास एक बहुत अच्छी खातून है, और ये माशाल्लाह डीन भी हैं बहरिया यूनिवर्सिटी की, और गायनी की प्रोफेसर भी हैं, और डॉक्टर शैला बकाई, यू ऑल नो डॉक्टर शैला बकाई। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, डॉक्टर शैला? जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू प्रोफेसर शैला फॉर ज्वाइनिंग। जी जी। Gee, I came across this on the social media, and I thought this is an essential webinar that I have to take, because I'm an SRHR champion, और मैं इसमें introduce किया
मैंने ये देखा कि हमारी जब भी कभी रेफर होता था केस of gender-based violence, women, girls, the people were unable to examine, unable to report, documentation was extremely poor. तो फिर मैंने एक मॉड्यूल डिज़ाइन किया और उसको असेंशियल किया, वी गॉट इट पास इन द CPSP काउंसिल, और रेजिडेंसी ट्रेनिंग में इसको हमने असेंशियल मॉड्यूल किया. इसको हम असेस भी करते हैं, बिकॉज अगर आप सिखाएं और असेस ना करें उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती. तो वी डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर द लास्ट 3 years नाउ. और इसके करने से देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज. पीपल नो हाउ टू अटेंड अ रेप और अ वायलेंस विक्टिम, कि असेंशियल इंजरीज क्या होती है, लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज को प्रायोरिटाइज करने के बाद आपको इनको पी भी देना होता है, STIs, Hep B, C, एंड यू हैव टू डू इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन. मैंने यहाँ जो देखा, हम लोग ये वैलिडेशन थोड़ी से सेशंस भी करते हैं. पीपल वुड ट्रीट but not provide emergency contraception. And then young girls would be coming up with unwanted pregnancies and becoming a real dilemma for the parents, and they would be unable to get the due medical attention. तो फिर हमने उनकी ये वैल्यू क्लैरिफिकेशन की कि ये यंग गर्ल्स है, व्हाई इज इट एसेंशियल, और फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट. और जैसे डॉक्टर सुमैया ने कहा कि जी पीपल वुड सेंड देम बैक to the same setting जहाँ वो violate हुए थे, like if it's a case of incest or by father or a grandfather. तो ये चीज़ें जो थी, ये इसको भी हमने एड्रेस किया, and we developed a shelter area in the hospital. because मेरा एक्सपीरियंस ये पूरे पाकिस्तान का है, because of my association with Pakistan Armed Forces. तो मैंने peripheries भी देखी, and I've attended to these cases even from very conservative societies like Pakhtuns and Timargara and ये जो Waziristan, and then even in Balochistan. So all this has made me very wise and how to address these things. मैंने तो इसको essential training दी है. And now becoming a dean of a medical university with 6 colleges functioning, including nursing and allied health sciences, paramedics, dental, medical, even a postgraduate institute. So I'm spreading this word even from the undergrad time. We teach our students how to address this, and on the public sector level, we are creating awareness. KG, it has to be reported. I remember one of my initial year cases when I was working in CMH Lahore. I had a patient whom I did a hysterectomy. And after 4 months, she brought her daughter. कि जी जब से मेरी वो जो 4 महीने का टाइम है, से वजह से बाद से ये वॉमिट कर रही है. They were belonging to a joint family system. And then the girl, she was being taken to gastroenterologist and many other people who did even endoscopy on her and all types of invasive ultrasound procedures, but they were unable to identify. And she was carrying a 16 weeks pregnancy. And the person predator was her cousin. कि जब उसकी अम्मी की hysterectomy हो रही थी, तो the cousin at home did all this wrong. Oh, And then both of them were trying to hide it. So we are Oh. trying to change this mindset कि जिसको hide नहीं करना. You have to Oh. report it in time. So this was my humble 2 cents. Thank you Lekin I so would much. like to be Thank- a part of this policy making curriculum. जब भी आप करें तो Sumaya is in Karachi. I'm also based in Karachi. We would collaborate and inshallah help her design the curriculum. Integrate. No doubt, Madam Bakai, actually this is not the issue of a single person, a single department. Ji. And even the government, we should cooperate, make hand to hand, join hand to hand, private public sector. Now I will request Dr. Simon Zubairi. Dr. Simon Zubair. Ji, Assalamu alaikum, everybody. Thank you, Madam, for joining us. Thank you for this opportunity. It's always great to listen to Dr. Sumaya, and thank you. Mia Saab is always there as the guiding lead in this. And Dr. Mulazim being PMA webinar of Sunday, this is a great series that you've initiated. But no words can emphasize more on the importance of this topic, क्योंकि ये अजल से अब तक ये टॉपिक जारी रहेगा. ये GBV कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ हमने इसके मतलब बोलना आप शुरू किया है या हमने बताना आप शुरू किया है. एंड PMA के प्लेटफॉर्म से एक चीज कहना चाहूंगी कि ये जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है ना,
रिपोर्टिंग से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है. रिपोर्टिंग इज द राइट ऑफ द survivor, and trauma informed care is the survivor center approach, or trauma informed questioning है, trauma informed interview है, trauma informed examination है. All this is now under trauma informed care, and we are working on that. And recently also I met Dr. Sumaya, और ये ARCC की जो information है, and who to contact, where to refer, what to provide to the survivor once she or he is in contact with you is very important. ये एक तमाम डॉक्टर्स को, और जैसे मियां साहब ने भी बताया कि इवन फर्स्ट ईयर MBBS को भी अभी से पता चलेगा, तो ये हमारा बिहेवियर चेंज आएगा. और हम कम अज कम, आई रिपीट वंस अगेन, रिपोर्टिंग इज नॉट अ मस्ट. यू डोंट हैव टू पुट दैट प्रेशर ऑन द सर्वाइवर कि आपने रिपोर्ट करना है. प्लीज be very clear about this. But the medical facility, the examination, the treatment, all the support is the right of the survivor. तो हमें उसके ऊपर जरूर फोकस करना चाहिए, and everybody should be equipped on this, because ये अब आपको टीवी पे तो नजर आ रहा होता है, लेकिन ये हर जगह गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हो रहा है, जिसमें बच्चे और हमारी यंग गर्ल्स, टीन एज गर्ल्स प्रेग्नेंट होकर डिलीवर कर रही हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले काम कर रहे हैं. लेकिन ये हर इंडिविजुअल का सोसाइटी में भी इफेक्ट है. रवात का मियां रशीद साहब को पता होगा, डॉक्टर सुमैया को पता होगा, बड़ा मशहूर केस था कुछ अर्सा पहले. एक बच्ची स्टेप फादर के साथ, स्टेप फादर घर से चला जाता था तो साथ नेबर अंकल ने देख लिया था, नेबर अंकल आ जाते थे. नेबर चला जाता था तो किरियानी स्टोर के दुकानदार ने देख लिया था कि इस घर में ये हो रहा है, वो भी आ जाता. इवेंचुअली दैट 14-year-old was 6 months pregnant जब सब कुछ डिस्कवर हुआ. तो लेकिन ये हमारे गली मोहल्लों में अगर लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं, तो हमें भी अपनी आंखें ओपन रखनी है, एज सिटीजन्स आल्सो, नॉट जस्ट एज डॉक्टर्स. डॉक्टर्स के तौर पे हमारे ऊपर और ज्यादा जिम्मेदारी है. वी हैव टू एक्ट मोर रिस्पॉन्सिबली एंड प्रोवाइड द केयर एंड support that they need from medical aspect, from the support of, we should all have contacts of women crisis centers, of child protection centers, of ARCC, that हमें पता होना चाहिए कि हमने अगर किसी की हेल्प करनी है, अगर कोई जाना चाहता है तो उसको हम कहाँ भेज सकते हैं. हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई, अब जैसे अभी जिक्र भी किया डॉक्टर सुमैया ने या डॉक्टर वजिया ने भी, कि वापस उसी घर में भेज रहे हैं उसको. हमें भी पता होना चाहिए ना हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम कहाँ का और उसको बता सकते हैं. जबरदस्ती नहीं कर सकते, बट वी कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द विक्टिम्स कि ये फैसिलिटीज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द गवर्नमेंट अवेलेबल हैं. Knowledge and information then becomes that power for that survivor. Thank you so much, Dr. Saima Zubair. Thank you. Before going to end, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर सुमैया आपने रहना है, मैंने आखिरी मैसेज आपसे लेना है कि अपने कैमरे ऑन कर लें. और डॉक्टर वजिया, मुझे इसका फ़ोटो लेना नहीं आता, सारे लोग अपने कैमरे ऑन करें कि हम एक ग्रुप फ़ोटो ले लें, ताकि आज माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपकी लेक्चर सुनने वाले लोग हैं. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इंडिया पाकिस्तान दोनों के लोग यहाँ पे बैठे हैं. मज़े की तो बात ये है. तो इसलिए मैडम नाजिश, मेरा हाल है जो लैपटॉप से होगा वो ले सकेगा. मैडम नाजिश, अगर आप ले सकती हैं. जी वदीद, आर यू देयर? वदीद, आप इसका, मुझे नहीं आता तरीका. वदीद, I have joined from mobile. So हाँ, मैंने भी मोबाइल से किया, मैंने मोबाइल वाले उस नहीं पे मैं लिए हैं, उसको लेकिन वो कहता हूँ, सब वदीद को कहता हूँ. वदीद, सर मैंने आप मुझे join बता किया दीजिए हुआ कैसे लैपटॉप पिक्चर से. लेना है, मैं ले लूंगी. आप मैडम लेना जरा टॉप एक एक हाँ, एक मुझे पिक्चर का डॉक्टर फोटो. साइमा, मुझे मैंने वजिया, मोबाइल अगर से आप ज्वाइन मुझे किया हुआ बता है. दें कि कैसे लेना है, मैं ले लूंगी पिक्चर. मैडम डॉक्टर ये साइमा, गैलरी वाले व्यू पे जाके जो है, आप अगर लैपटॉप से हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेंगी. ओके. डॉक्टर नाजिश, डॉक्टर साइमा, मैंने तो मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ है. कोई बात नहीं मैडम, आपकी गैलरी वीडियो आ रही है. डॉक्टर जी, मैं सुमैया, यू गैलरी कैन व्यू पे टेक ही अ हूँ. स्क्रीनशॉट. वीडियो तो गैलरी आ व्यू रही है, में लेकिन just take a इसका आज screenshot. वदीद भी गायब हो गया है, मेरा आईटी का इंचार्ज. और मुझे हाउ डू आई टेक अ स्क्रीनशॉट? आई एम सॉरी, आई एम टोटली अच्छा टेक अच्छा, मैं अनसैवी. खुद मैं ले लेता डॉक्टर हूँ. सुमैया, ले ले सर. you can hit on the window sign and then you Okay. can hit on the अच्छा print जी, screen. मैं लेने लगा ऑन हूँ. द स्क्रीन. print On the screen. print Okay. screen. अच्छा, प्लीज बी रेडी. एक हो गई. और अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुलाजिम. जी मैडम, जी मैडम, मैं दोनों लेने पिक्चर लेने लगा हूँ.
रेडी हो जाए। जी जी ले लें, बिल्कुल ले लें। अभी 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 क्योंकि अभी 1 मिनट, और आज कुछ लोगों ने अपने कैमरे ऑन नहीं किए हुए। ये डॉक्टर सुमैया, आई विल रिक्वेस्ट के जाते हुए ना एक कम्प्रीहेंसिव सा मैसेज 1 मिनट के लिए दे दें आप। सर थैंक यू जी सो जी मच। जी आई थिंक मेमुना कुछ कह रही है। जी नहीं, जी, नहीं, वांट टू नहीं। से समथिंग। Okay. जी जी थैंक यू सो मच सर। मुलाजिम साहब, मियाँ साहब, मैडम बकाई, वजीहा, नाजिश, साइमा and all the others who are here, thank you very much for this overwhelming response. मुझे नहीं अंदाजा था कि जो मैं कहने जा रही हूँ वो इतना अच्छा रिसीव किया जाएगा। अब I would love it, I would appreciate it if you could reach out to me and we could work together. And it's not, remember, it's not for anyone else, it's for the survivor. और अगर हम सर्वाइवर को एम्पावर करेंगे तो आई थिंक मैडम, सारी मैं चीजें आपसे शायद गुजारिश बेहतर होनी करूंगा, वो शुरू जो हो जाएंगी। एक मैसेज नहीं होता जो जी सारी जगह घूमता है, इसको एक शार्ट आप एक मैसेज दें इस टॉपिक के ऊपर, टॉपिक के सेक्सुअल एंड जेंडर बेड, 1 मिनट या 1.5 मिनट का एक मैसेज दें। ठीक है, आई ट्राई सर, कोशिश करती हूँ। Sexual and gender-based violence is a reality. It's such a huge reality that, and it's a very horrific reality for those not only जिनके ऊपर ये हो रहा होता है, बल्कि वो जो उन लोगों के साथ associated होते हैं। और ये उनके लिए भी horrific है, हम जैसे लोग जो उन केसेस को देखते हैं, because day in and day out हम उनकी उस पे हम उनके ट्रॉमा को अपने साथ लेके भी जाते हैं। So essentially health sector सबसे ज्यादा इस पे impact होता है। Sexual and reproductive health as part of clinical management of sexual violence को अब तक हम overlook करते आए हैं. It is time that we started talking about sexual and reproductive health for our sexual violence survivors, psychiatric rehabilitation for our sexual violence survivors, for STIs treatment, emergency contraceptive measures जो उनका basic right है, and not as just human beings, but also which is very important in their journey from victimhood to survivorhood. मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त हम अपने मेडिकल करिकुलम में लीनियर इंटीग्रेशन मॉड्यूल को रखते हुए सर्टेन एक्सटेंट, सर ने उसको, अब्दुल रशीद मियाँ साहब उसको मजीद आगे ले गए हैं, मैंने तो 3rd ईयर से स्टार्ट किया था, मगर अब हम इसको 1st ईयर से इंटीग्रेट करें, लीनियरली इंटीग्रेट करें, ताकि आखिर में जब हमारा बच्चा पास आउट हो 5 years down the line, so all of them will be equipped adequately to handle such cases. And reporting should not be our main target. Our main target should be reintegration and complete healing of the victim into a survivor, जो कि एक empowered survivor हो. Thank you very much, sir. Thank you so much. आखिर में प्रोफेसर सलमा, आर यू देयर? या डॉक्टर आज रशीद साहब आप सबका शुक्रिया अदा कर दें। थैंक यू जी, थैंक यू तमाम लोगों का, बड़े बड़े सीनियर लोग आए। देयर वर 47-48 पार्टिसिपेंट्स, और मैडम सलमा कुंदी का, बुखारी साहब का बहुत ज्यादा शुक्रिया, डॉक्टर समिया का, शैला बकाई, और जितने भी लोग आए हैं उन्होंने अपने कमेंट्स किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आई होप एक्टिविटी क्रिएटेड बाय डॉक्टर सलमा कुंदी एंड बुखारी साहब विल कंटिन्यू। थैंक यू। डॉक्टर वजिया रिजवान, आप मेडिकल वुमेन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे सबका शुक्रिया अदा करें कि माशाल्लाह आज बड़ा बहुत अच्छा ये आज का ये है, आपके अल्फाज बहुत अहम होंगे। नहीं सर, थैंक्स अ लॉट। कि सर मैं आपको एक बात बताऊं कि आई एम अ पीडियाट्रिशियन, आई एम मेनी टाइम्स इनवाइटेड ऑन मॉर्निंग शोज, अभी कल भी मैंने एक जाना है, बट व्हेनेवर आई आस्क देम टू टॉक अबाउट चाइल्ड अब्यूज और मतलब या अब्यूज के बारे में, तो वो इस टॉपिक पे बात भी नहीं करना चाहते। अनफॉर्चुनेटली सर, we feel shy to talk about the sexual abuse or sexual violence, but we are not ashamed as a society that it is happening so much in our houses or the places we consider safe. It occurs in even elite class schools. Sodomy is so much common in young boys, but we feel reluctant to talk about this. हमें लगता है कि जैसे मेहमानों के आने के ऊपर गंद अलमारियों के अंदर छुपा दो तो सब ठीक हो जाएगा। तो I salute you and Dr. Salma Kundi and Professor Rashid Sahab and Dr. Sumayya for talking over this topic, and hats off to you, sir. And we are all there for any kind of support you need us
from us in a personal capacity or as a Medical Women Association of Pakistan. Thank you, sir. Thank you so much.